everyone, welcome to my YouTube channel Equation Essence. This is Ifra and I hope you all are doing good. I am going to start one new series of trigonometry. As you all know, trigonometry is itself a subject. So in one video I am not going to explain you whole trigonometry. Instead of that, I am going to make small videos of different topics of trigonometry that will help you understand trigonometry well. So let's start our first topic. Let's start with the definition of trigonometry, that is, it is a study of the relationship between the angles and the side of a right angled triangle. कैसे relationship है between the angles and the sides of a right angled triangle. कोई भी एक right angled triangle है, उसमें जो angles और sides के बीच का जो relationship है, that can be comes under trigonometry and it is used to find height, distance, navigation, construction. These are the practical you can say practical uses of trigonometry, or you can say applications of trigonometry, that is how trigonometry can be used in day-to-day life. So in day-to-day life, trigonometry can be used in height and distances, to finding the navigation, or in the construction, or nowadays in the gaming also, because there are various type of games invented and major angles and size that can be used for the picturization. So let us start with the basic concept of trigonometry, that is parts of a right triangle. एक right triangle से start, trigonometry एक right angle triangle से start हुई है और उसके बाद वो धीरे धीरे पूरा अपना सब्जेक्ट बन के तैयार हो चुकी है. तो सबसे पहले आपको तीन मेन टर्म है जो पता ही होनी चाहिए अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है. तो दैट इज हाइपोटेन्यूज, दैट इज परपेंडिकुलर एंड बेस. हाइपोटेन्यूज and the perpendicular, or this is the perpendicular and this is the base. So the opposite side is known as the perpendicular and the adjacent side is known as the base. अगर उसकी opposite side perpendicular है तो adjacent side उसकी base होगी, और अगर adjacent side उसकी perpendicular है तो उसकी opposite side base होगी. ये vice versa चलती रहेगी, लेकिन hypotenuse वही रहेगी, and hypotenuse is the longest side of a right angle triangle which is the opposite of the perpendicular. 90 डिग्री का एंगल जहाँ बन रहा है उसकी जो opposite side है, that is known as the hypotenuse side of a right angle triangle. अब there are 6 terms: sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta and cot theta, where theta is any angle that is made by you can say either perpendicular or base with the hypotenuse. So theta is the angle between hypotenuse and base or hypotenuse perpendicular. कोई सा भी एंगल हो सकता है, हम उसको थीटा ले सकते हैं, लेकिन राइट वाला एंगल थीटा को हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि थीटा एंगल जो है वो हाइपोटेन्यूज से बनेगा, या तो वो परपेंडिकुलर के साथ बनेगा या तो वो बेस के साथ बनेगा. सो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. साइन थीटा कोसेक थीटा जो है वो आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, दैट इज साइन थीटा इज 1 अपॉन कोसेक थीटा. तो जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो यहाँ पर कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा. सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, एंड कॉट थीटा टेन थीटा का ऑपोजिट होता है, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो ये एक जनरल है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी बी पी एच एच बी. हमारे टर्म में तो हम ऐसे बोलते थे प्यारी बहना पारो हौले हौले बोलो. प्यारी बहना पारो हौले हौले बोलो, और उसको हम ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड कर देते थे, जिससे पहला वाला साइन होता था, दूसरा वाला कॉस और तीसरा वाला टैन, और उसके ऑपोजिट में नीचे से लें तो कॉट सेक कॉसेक. तो ये हमारा टर्म था
इन तीनों फॉर्मूले को याद करने का आपका क्या टर्म है इनको याद करने का, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरे लिए भी कुछ इनोवेशन हो और मैं उसको अपनी वीडियोस में डाल सकूं। जब हमें ये तीनों चीज़ें पता चल जाएं तो उसके बाद आती हैं इनकी एंगल की वैल्यूज़। साइन थीटा आप याद रखिएगा, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो मैटर करेगी फ्रॉम 0 to 1, और कॉस थीटा के उसके ऑपोजिट 1 to 0। इसमें हमारी एक शॉर्ट ट्रिक है कि साइन की वैल्यू जो है वो थीटा की 0 से 1 तक जाएगी, और कॉस की वैल्यू किस में होगी, कॉस की वैल्यू 1 से लेकर 0 पे जाएगी। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि 0 और 90 के बीच में जब हम एंगल लेते हैं तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, ये दोनों वैल्यूज़ आपको याद रहेंगी। आप पूरी टेबल को खुद बना सकते हैं। कैसे? जब साइन 0 0, साइन 30 1/2, 45 1/√2, √3/2 एंड 1, कॉस 0 इसका उल्टा 1, √3/2, 1/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ये दोनों वैल्यूज़ आपको पता है 10। क्यों 10? क्योंकि 10 जो है साइन अपॉन कॉस होता है। 10 की वैल्यू आप यहाँ पे भी रख लीजिए, साइन अपॉन कॉस। आप खुद यहाँ पे रख के देखिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से h और h कैंसिल, और ये p अपॉन b आ जाएगा। तो साइन थीटा को टेन थीटा को हम साइन अपॉन कॉस करेंगे, 0/1 इज 0, 1/2 अपॉन √3/2 इज 1/√3, 1/√2 1/√2 1, √3/2 1/2 इज √3, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा है, तो उल्टी सारी वैल्यूज लिख दीजिए, नॉट डिफाइंड, √3 1, 1/√3 एंड 0। सेक इज 1 कॉस, तो 1/1 इज 1, 1/√3/2 इज 2/√3, 1/√2 इज √2, 1/2 इज 2, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। और उसी तरीके से कॉसेक को अगर हम लेंगे तो या तो हम सेक का उल्टा कर लें या फिर हम उसको साइन में उल्टा करें। तो 1/0 is not defined, 1/2 1, upon 1/2 is 2, 1/1/√2 is √2, 1/√3/2 is 2/√3 and 1/1 is 1. So these are the shortcuts. कभी भी एक क्वेश्चन में ना आपको हमेशा वैल्यूज नहीं याद रहती, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वैल्यूज आ कैसे रही हैं। ट्रिग्नोमेट्री में इतने सारे फॉर्मूलेज हैं, तो अगर आपको फॉर्मूले निकालना नहीं पता चलेगा तो आपको उसको सॉल्व कर नहीं पाएंगे। तो आपको कुछ वैल्यूज़ तो याद रखनी पड़ेंगी, लेकिन कुछ वैल्यूज़ ऐसी भी होती है जो याद नहीं रह पाती, तो हमें उन्हें निकालनी पड़ती हैं। तो अब हम किस तरीके से निकालेंगे, दैट इज़ वाई आई एम हेयर टू मेक यू वीडियोज़। कुछ आइडेंटिटीज़ और भी हैं जो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है और रिलेटेड है इसी वाले टॉपिक से। दीज आर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 plus tan square theta is equals to sec square theta, and 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta। इसे भी याद हम ऐसे ही करते हैं, साइन थीटा जो ऐसे यहाँ पर है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा, इन दोनों का स्क्वायर कर कर हम अगर ऐड करेंगे तो वो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इसमें हम इसको ऐड करेंगे दैट विल इक्वल्स टू दिस, एंड इसमें जब हम ऐड करेंगे दैट विल इक्वल टू दिस। सो दीज आर द गोल्डन ट्रिक्स दैट आर वेरी यूजफुल in solving any question in trigonometry, and based on these values I'm going to tell you some examples that will help you in your competitive exams. Example number 1 is, in a triangle, perpendicular is 3 and hypotenuse is 5, find the value of sine cos and tan theta। तो सबसे पहले हमें बेस निकालनी पड़ेगी। तो बेस के लिए हम अगर हम रूल लगाएं तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो बेस हो जाएगा हमारा अंडर रूट
h square minus b square. Hypotenuse is 5 5 is 25 minus 3 3 is 9 which is under root 16 that is 4. नेगेटिव वैल्यू हम लेते नहीं क्योंकि एंगल हमारे नेगेटिव में हाइट डिस्टेंस हमारी नेगेटिव में आती नहीं है. उसके बाद साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. cos theta is equals to base upon hypotenuse and tan theta is equals to perpendicular upon base. तो परपेंडिकुलर हमारी क्या थी 3 अपॉन 5. cos theta is equals to जो हमारी बेस आई दैट इज 4 अपॉन 5 और tan theta हमारी हो जाएगी 3 अपॉन 4. These are the values of sin theta, cos theta and tan theta. Next question is sin theta is 4 upon 5 है तो हमें cosec theta बताना होगा. तो sin theta is equals to 1 upon cosec theta हो जाता है या cosec theta की वैल्यू हमारी 1 upon sin theta which is equals to 1 upon 4 upon 5 that is equals to 5 upon 4. Third question is if sec theta is equals to 13 upon 5, sec theta की वैल्यू होती है क्या हमारी hypotenuse upon base, that is hypotenuse की वैल्यू 13 है, base की वैल्यू 5 है, perpendicular की वैल्यू 169 minus 25 that is equals to 144 that is 12. तो हमारे पास बेस परपेंडिकुलर की वैल्यू जब 12 आ जाएगी तो tan थीटा क्या है, हम किसी भी थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं. परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज हमारी 12 एंड बेसेस आर 5. तो द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज 12 अपॉन 5. परपेंडिकुलर बेस और हाइट की हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आपको पता चल जाए, आप साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं. And I hope this video helps you a lot and it will help you in your competitive exam. I will see you soon in my next video with a new topic of trigonometry. Thanks for watching, and if you haven't subscribed my channel, please subscribe it. Thanks for watching. Did you know this series has a mirror image? 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1. नंबर्स को इस तरफ से देखें या दूसरी तरफ से देखें, नंबर सेम दिखेंगे और ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं मैथमेटिक्स में पैलिंड्रोम.